ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ। सत श्रीकाल, मैं हूँ डॉक्टर प्राची, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, और मैंने अपनी पढ़ाई आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में की है। मैं डाइटिशियन भी हूँ और होलिस्टिक न्यूट्रिशन कोच भी हूँ, साथ ही साथ गर्भ संस्कार एक्सपर्ट भी हूँ, जो हम करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਡਾਈਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੈਜਿਸ ਲੈ ਲਓ, ग्रीन वेजिस ले लो, घर की रोटी सब्जी खा लो तो डाइट होगी। डाइट एक कंप्लीट, अगर आप डाइट की बात करें जी, तो वो एक हमारे जो पांचों न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये पांचों कंप्लीट चीज़ें न्यूट्रिशन जिन चीज़ों में हो वो एक कंप्लीट डाइट होती है। तो अगर एक इंसान को अपनी प्लेट तैयार करनी हो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? सबसे पहले हमारे जो रॉ आइटम है, हमारी सैलड्स एंड ऑल है, वो हमें खानी चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रोटीन और फैट्स के ऊपर जो है, तो हम कर्ड ले सकते हैं, हम दालें लेते हैं, वो चीज़ें, सब्जियां ज़्यादा ले सकते हैं, वो हम खाएंगे। फिर हमारी हो गई रोटी, हो गई ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ तो मतलब इन्हें रोटी सब्जी सारा कुछ छड़ दिता है, सैलड खा रहा होएगा, ग्रीन वेजिस खा रहा होएगा, सूप पी रहा होगा, ये उत्ते रहिंदा है। सो इन्हां चीज़ों के बारे तुहाडा की कहना है? क्योंकि अभी तो इतना इंटरनेट में पूलिंग है जी, इतनी चीज़ें दी हैं, इतनी चीज़ें दी हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। फिर उसको होता है कि नहीं, मैं अगर सिर्फ सब्जियां और वो खाऊंगा, फाइबर ज़्यादा खाऊंगा, है ना, या मैं सिर्फ फैट ये प्रोटीन खाऊंगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, है ना। इसलिए लोग होता है कि सिर्फ यही ज़्यादा खाते हैं कि जैसे सैलड खा लिया, सूप पी लिया जी, उससे मेरा वेट जल्दी घटे। डेफिनेटली घटेगा, पर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट भी हो जाएंगे क्योंकि आपको बाकी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग डाइट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ: ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡਾਈਟ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ। सत श्रीकाल, मैं हूँ डॉक्टर प्राची, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, और मैंने अपनी पढ़ाई आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में की है। मैं डाइटिशियन भी हूँ और होलिस्टिक न्यूट्रिशन कोच भी हूँ, साथ ही साथ गर्भ संस्कार एक्सपर्ट भी हूँ, जो हम करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵੇਟ ਲੋਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਐਡਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਡਾਈਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੈਜਿਸ ਲੈ ਲਓ, ग्रीन वेजिस ले लो, घर की रोटी सब्जी खा लो तो डाइट होगी है। पर तुहाडे हिसाब नाल डाइट की है? देखिए, डाइट एक कंप्लीट, अगर आप डाइट की बात करें जी, तो वो एक हमारे जो पांचों न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये पांचों कंप्लीट चीज़ें न्यूट्रिशन जिन चीज़ों में हो वो एक कंप्लीट डाइट होती है, एक हेल्थी डाइट होती है ना। जैसे अगर आप कार्ब्स की बात करें तो आपके रोटी हैं, मिलेट्स हैं, है ना। प्रोटीन की बात करें तो दालें हो गई, वो हमारी सारे, है ना, राजमा छोले जो हम खाते हैं, है ना, लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स बोलेंगे, उसमें प्रोटीन होता है। उसके अलावा फिर आप बात करें
विटामिन मिनरल की, जी। तो उसमें हरी सब्जियां, फ्रूट्स, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन चीज़ों में ज़्यादा विटामिन मिनरल होता है। फैट्स आपको पता ही है कि जो हमारे ऑयल, घी, ये जो हम चीज़ें खाते हैं, नट्स हम खाते हैं, सीड्स खाते हैं, जी। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं। तो जी। ये चीज़ें अगर कंप्लीट हम ले रहे हैं, सो दैट इज़ अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल हेल्दी डाइट। ਓਕੇ ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? उसमें अगर मैं सीक्वेंस में बात करूं, अभी देखिए आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है, मील सीक्वेंसिंग भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो रॉ आइटम है, हमारी सैलड्स एंड ऑल है, वो हमें खानी चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रोटीन और फैट्स के ऊपर जो है, तो हम कर्ड ले सकते हैं, हम दालें लेते हैं, वो चीज़ें, सब्जियां ज़्यादा ले सकते हैं, वो हम खाएंगे। फिर हमारी हो गई रोटी, हो गई, वो भी ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें कंप्लीट एक हमारी होती है, तो हम एक कंप्लीट हमारी प्लेट कहलाती है। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੈਲਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜਿਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, सूप पी रहा होगा, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ सो ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? एक्चुअली अब अगर आप 90% लोगों को देखेंगे जो अपने आप से डाइट करते हैं बिना किसी के अंडर गाइडेंस में, वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो इतना इंटरनेट में पूलिंग है जी, इतनी चीज़ें दी हैं, इतनी चीज़ें दी हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। फिर उसको होता है कि नहीं, मैं अगर सिर्फ सब्जियां और वो खाऊंगा, फाइबर ज़्यादा खाऊंगा, है ना, या मैं सिर्फ फैट ये प्रोटीन खाऊंगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, है ना। इसलिए लोग होता है कि सिर्फ यही ज़्यादा खाते हैं कि जो सैलड खा लिया, सूप पी लिया जी, उससे मेरा वेट जल्दी घटे। डेफिनेटली घटेगा, पर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट भी हो जाएंगे क्योंकि आपको बाकी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग डाइट। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है। बहुत डबल रेट में बढ़ता है। अगर आपने 5 किलो घटाया तो आपका 10 किलो बढ़ जाएगा जैसे ही आप छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को आदत है बचपन से लेके, जब से हम पैदा हुए 6 महीने के से जब हमने खाना स्टार्ट किया है, हमारी माओ ने सब कुछ खिलाया हमें, है ना, रोटी सब्जी दाल चावल दही, है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल, सब कुछ खिलाया जी। ऐसे ही हम हेल्दी होके बड़े हुए हैं, राइट। पर अब ये जो फैंसी कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं इतने सारे ना, वो करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हो जाते हैं जी। हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, हम फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हम सिर्फ सैलड्स, फैंसी सैलड्स खा रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट न्यूट्रिशन। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਮੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, weight lose ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ? एक्चुअली दीज ऑल आर सप्लीमेंट्स। ये क्या ये चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है नॉर्मल प्रॉपर फूड खाने का। ये क्या है, चलते फिरते लोग खा लेते, सप्लीमेंट है कि हाँ भाई पाउडर घोला पिया चले गए, शेक बना के पिया चले गए ना, गमीज चबा ली, उससे ओके ठीक है कि कुछ हद तक यह काम करेगी वो कहीं ना कहीं क्योंकि उसमें डाला हुआ है, बट दैट इज आर्टिफिशियल ना, अल्टीमेटली है तो आर्टिफिशियल सोर्स ही, नेचुरल सोर्स नहीं है। हमारे शरीर को आदत क्या है, हम बचपन से रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, हमारा ब्रेन, हमारा गट, हमारा सब कुछ जो है वो उसी के हिसाब से चलता आ रहा है। उसको आदत है इस चीज़ की एब्जॉर्ब करने की। हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है क्योंकि हम वो चीज़ खाते हैं। अब आप ऊपर से सप्लीमेंट्री चीज़ डालोगे उसके लिए वो नहीं होगी, आपके गट के लिए भी नहीं होगी, आपके ब्रेन के लिए भी नहीं होगी। तो वो चीज़ें जो है वो टाइम लेगी और साथ में इतनी तो न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी जो प्रॉपर फूड कर पाएगा। दैट इज जस्ट अ सप्लीमेंट, इसलिए सप्लीमेंट नाम रखा हुआ है एडिशनल डालने के लिए। बट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप ये चीज़ें लेते हैं और अपना नॉर्मल खाना नहीं खाते हैं, बॉडी आपकी कंफ्यूज हो जाती है। तो वो कंफ्यूजन में बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, ऑर्गन्स ऐसे रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है। आपने जैसे सुना होगा, आपने बोला भी कि लॉन्ग टाइम में आप वेट लॉस पिल्स ले रहे हैं या आप शेक्स ले रहे हैं या आप सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, आप खाना नहीं खा रहे हैं। तो आपने सुना होगा किसी का गट हेल्थ बहुत पुअर हो जाता है, फिर लोगों की तो किडनियां भी फेल हो जाती हैं, लिवर फैटी लिवर हो जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी बीमारियां डेवलप होती हैं। कहने को तो आपने वेट लॉस कर लिया, 15-20 किलो कर लिया, पर जो दूसरी बीमारियां डेवलप की उन चीजों से, उसका क्या फायदा है ना।
ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ weight loss ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ weight loss ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ weight loss ਹੁੰਦਾ, effortless weight loss ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ weight loss ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਜੀਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight loss ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। सो इस तरह दी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं आजकल। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को यही होता है कि हम स्किनी हो जाएं, है ना, पर वो स्किनी होने के बाद आप देखो, आप देखने में तो आप फ्रेम स्लिम हो जाएगा, पर ना आपका जो वो हेयर, जो लश्रस हेयर है, जो आपकी स्किन एक होती है, ग्लो होती है, आपकी एज के अकॉर्डिंग जो होती है वो चीज़ें चली जाती हैं। आप थकान महसूस करने लगते हैं, इंटरनली वीक होने लगते हैं, है ना। आपको लगता है थोड़ा सा काम किया, 4 सीढ़ियाँ चढ़ ली, आप थक गए। क्यों? क्योंकि आप कहने का तो पतले हो रहे हैं, पर अंदर की जो ताकत है वो भी आपकी निकल जाती है, साथ ही निकल जाती है जी ना, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ हेल्दी फॉर्म। और इसीलिए धीरे 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 करके जब हम लॉन्ग टाइम के लिए ये लेते हैं, हमारे ऑर्गन फेल होने लगते हैं और वो अल्टीमेटली डेथ कॉज करते हैं। जी ਤੇ ਮੀਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਲਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ 3 ਮੀਲਸ ਲੈਂਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਲਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आयुर्वेद में बात करूं तो हमें तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लग रही है, क्योंकि हर किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है ना। किसी को बहुत भूख लगती है तो वो हमेशा कि दे कीप ऑन मंचिंग, किसी को होता है कि अभी खा लिया तो 4-4 घंटे तक भूख भी नहीं लगती, है ना। इट डिपेंड्स ऑन कि किसकी क्या प्रकृति है, बट स्टिल अपना मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए 3 मील तो हमें लेनी ही लेनी है। जो मेजर मील है हमारी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके बाद जो आप मिड मील्स लेते हैं, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल ट्रेंड है 5 to 6 मील्स अ डे वाला, तो वो 5 to 6 मील्स यानी ये नहीं कि उसमें आप अनाज ले, है ना। जो मेजर मील्स हैं वो यही रहेंगे हमारी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पर जो बीच वाली होंगी, जैसे अर्ली मॉर्निंग हो गया, आपने हेल्दी मतलब कुछ ऐसे जूस ले लिया, वेजिटेबल जूस ले लिया ना, एल्कलाइन जूस हो गया, वो ले लिया आपने। जैसे 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है, आप 1 बजे या 2 बजे लंच करते हैं, तो बीच में बहुत गैप हो जाता है। उस गैप में जैसे डायबिटिक लोग हैं, दे कैन नॉट, मतलब इतना ज़्यादा गैप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उस टाइम पे बीच में आप मुरमुरा है, चना है, या फिर आप जूस ले लो, कोकोनट वाटर ले लो, लस्सी, दही, या ये कोई भी जूसेस, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप लीजिए, तो वो बेटर होता है इस टाइम पे। फिर शाम को जैसे आपने लिया, यूजुअली हमारे इंडिया में तो आपको पता है कि चाय वाली होती है, तो हम जैसे घर में भी हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारे आप देखेंगे गार्डन में हमारे घर हाइबिस्कस है, लेमन ग्रास है ना, लेमन है, रोज है, तो हर दिन मैं अलग अलग टाइप की चाय बनाती हूँ। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग, मतलब आप काली चाय भी पी सकते हैं, पर इन चीज़ों की भी चाय पी सकते हैं। एक टाइम आप नॉर्मल चाय पी लो, दूसरे टाइम आप इस टाइप की चाय पी लो, रिफ्रेशिंग होती है जी। और भूख लग रही है तो आप मुरमुरा है, मखाना है, रोस्टेड चने हैं, या भेल टाइप की ऐसे कुछ हल्का चीज़, या फ्रूट ले लो ना, इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हैं, ताकि आपके मतलब भूख भी ना लगे और डिनर भी डिस्टर्ब ना हो आपका, या लंच डिस्टर्ब ना हो इन चीज़ों के खाने से। ओके, सो एक सवाल इत्थे आंदा भी, ਆਪਾਂ अगर देखिए तो आजकल लोग सैलीब्रिटीज़ ਨੂੰ भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो मैं जिद्दां सैलीब्रिटीज़ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੈਲਡ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੈਲਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਡਾਈਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਤੇ बैड फैट है कि या फ़र्क की है? ओके, सो आपने जैसे बोला सेलिब्रिटीज़, अगर मैं बात करूँ सेलिब्रिटीज़ का, देखो उनका काम है, उनको किसी रोल के लिए मोटा होना है, किसी रोल के लिए पतला होना है, है ना, वो डिपेंड करता है वो उसके, पर वो वर्कआउट भी उतना ही करते हैं, बिल्कुल, है ना, और खाते भी प्रॉपर डाइट है, ऐसा नहीं है वो किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन के अंडर खा रहे होते हैं और प्रॉपर मील लेते हैं और सब कुछ खाते हैं जो उनको पसंद है। ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, वो तो हमें पता नहीं लगता बिकॉज हम फैंसी चीज़ सामने की देखते हैं। तो बट द थिंग इज़ कि
आपने जैसे बोला कि घी नाल रोटी खाते हैं तो इट्स गुड। एक्चुअली हमें ज़रूरत है फैट्स की। फैट की ज़रूरत इसलिए, अगर आप फैट नहीं खाएंगे आपके जॉइंट पेन हो जाएंगे, आपकी बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगी, आपकी स्किन देखेंगे रफ हो जाएगी ना। तो फैट ल्यूब्रिकेशन का काम करता है ना फैट, तो हमारे जॉइंट्स में, मसल्स में ये लुब्रिकेंट का काम करता है। आप देखेंगे लोग आजकल तो ट्रेंड है कि अगर हमने वेट लॉस करना है कुछ, हम तो जी घी छोड़ रहे हैं। हाँ। क्योंकि आजकल हार्ट डिजीज बड़ी हो रही है, आजकल हमें पतला होना है, इस चक्कर में हम घी नहीं खाएंगे। पर फैट भी, जैसे आपने पूछा डिफरेंस के, ये है ना गुड फैट बैड फैट, तो वही आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि व्हाट आर गुड फैट्स, व्हाट आर बैड फैट्स, और उसके हिसाब से आपने वो फैट लेने हैं। अब जैसे देसी घी है, सो देसी घी इज गुड, है ना, स्पेशली काऊ मिल्क का है। अगर आप गाय के दूध का घी बना रहे हैं तो वो बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में सबसे उच्चतम माना जाता है गाय का दूध, और उसका घी सबसे उच्च माना जाता है, तो हम वो जरूर लें। अगर बात आजकल मतलब मिल्क, आपको पता है कि पैकेट्स वाले आते हैं, उसके ऊपर हम नहीं डिपेंड कर सकते, तो कोशिश करें कि जो जिनके पास गाय या भैंस हो उनसे दूध लें। भैंस का दूध थोड़ा फैट वाला होता है, उसको आप 2-3 बार उबाल के मलाई निकाल सकते हैं घर में, हाँ घी निकाल सकते हैं। तो गाय का जो घी है वो बेस्ट होता है। हम घर में गाय का घी निकाल सकते हैं। आप गाय का दूध लो, उसकी मलाई निकालो, या भैंस का भी ले रहे हैं तो उसकी मलाई 2-3 बार उबाल के निकाल लीजिए, और वो उसका आप घर में खुद ब खुद घी बनाए, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आप क्या ले रहे हैं। उसके अलावा जैसे आप ये नट्स हैं, हमारे नट्स एंड सीड्स हैं ना, अगर मैं बात करूँ बादाम की, अखरोट की, है ना, काजू है, पिस्ता है, इन सब में गुड फैट्स होते हैं। उसके अलावा आप आजकल देख रहे होंगे कि बहुत ट्रेंडिंग है चिया सीड्स एंड ऑल, बिल्कुल दिमाग से चल रही थी। जैसे सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड्स, ये सारे जो सीड्स हैं इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारा HDL जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो बढ़ाता है, और जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम करता है। सो इनका रेगुलर यूज आप कर सकते हैं, फ्लेक्स सीड। पर ये है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं खानी होती हमें। अगर आप 1 चम्मच मिक्स सीड्स खा रहे हैं या 1 चम्मच चिया सीड्स ले रहे हैं भिगा के, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि ये गुड फैट है एंड वो कम अमाउंट में आप खाते हैं तो भी वो चलेगा। ओके, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ weight loss ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ chia seeds ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? हाँ, आज ही मैं एक्चुअली एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो चिया सीड्स जो है वो आप वैसे तो आप सुबह सुबह पानी में भी डाल के ले सकते हैं, किसी जूस में डाल के ले सकते हैं, या अभी समर का सीजन है तो समर सीजन में बेस्ट अगर आपने चिया सीड्स लेना है तो आप इन्फ्यूज्ड वाटर बनाइए। पानी लीजिए, उसमें चिया सीड्स 1 चम्मच भीगा हुआ चिया सीड्स डाल दीजिए, खीरा, नींबू, अदरक, मिंट, ये लीव्स डाल के पानी फ्रिज में रख दीजिए, है ना, और ये पानी आप सारे दिन में पीजिए। 1-1.5 लीटर बना लीजिए। ये 1.5 लीटर पानी आपने ये पीना, बाकी नॉर्मल पानी पिए, पर ये 1.5 लीटर पानी आपने ये इन्फ्यूज वाटर अगर आप पीते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर ब्लड, क्लीन करेगा, डिटॉक्स करेगा, मतलब आपकी बॉडी स्किन अच्छी करेगा। ऊपर से आपको प्यास नहीं लगेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि समर में यहाँ पे आपको पता है स्क्रॉचिंग हीट होती है। तो उस फॉर्म में ले सकते हैं आप, पुडिंग में डाल सकते हैं आप, शेक्स के ऊपर डाल सकते हैं, अपने कर्ड के ऊपर डाल सकते हैं। ओके, पर ये टू मच नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप चिया सीड्स अगर मतलब ओमेगा 3 है बट उसमें फाइबर भी है, तो बहुत ज्यादा जब आप फाइबर लेते हैं तो उससे आपको ब्लोटिंग, है ना, गैस वगैरह जो होती है ना, गैस है, फ्लैटुलेंस है, ब्लोटिंग है, वो चीजें डेवलप होती हैं। तो बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, 1 चम्मच टीस्पून भर के आप ले लीजिए पूरे दिन में, या 2 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਿਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? एक्चुअली जिम में देखिए लोग जाते हैं, ओके फिटनेस के लिए जाते हैं, बट हर किसी की बॉडी अलग होती है। अगर मैं मेल बॉडी की बात करूं, उनके मेस्कुलाइन बॉडी होती है ना, मेल बॉडी में मसल मास ज़्यादा होता है, फीमेल बॉडी में फैट मास ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप मेल बॉडी जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, स्पेशली बॉयज़ जो करते हैं, स्पेशली बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो वेट उठाते हैं, 100-100 किलो वेट भी उठाते हैं सिर्फ वो करने के लिए, उनको चाहिए एक्स्ट्रा प्रोटीन। अगर वो नहीं लेंगे उनकी मसल थक जाएंगी जी, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ नॉर्मल 1 घंटे के लिए जिम जा रहे हो, जिसमें आधा कार्डियो कर रहे हो, 2-4 साइकिलिंग कर रहे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा वेट मतलब
30-40 किलो उठा रहे हो, उसमें आपको एडिशनल बहुत सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर लेने की। आप घर में ही नॉर्मल जो प्रोटीन है वो काउंट थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपका काम चल जाएगा जी। क्योंकि फीमेल्स की बॉडी और मेल की बॉडी में एक तो फ़र्क है, और दूसरा आप एक्सेस हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें आपको अलग पड़ता है, इसलिए लोग वे प्रोटीन या वो प्रोटीन्स खाते हैं ताकि उनके मसल टायर्ड ना हो। उन्होंने भारी वेट उठाना है ना, बॉडी बिल्डिंग करनी है। हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, हम जाते हैं, हम एक वर्कआउट पर्पस के लिए जाते हैं कि हमने कैलोरी बर्न करनी है, दैट्स इट, राइट। अनटिल एंड अनलेस आप बॉडी बिल्डर हो तो कैलोरी बर्न करनी है, उसके लिए आप कैलोरी बर्न कीजिए। एक्स्ट्रा ये सप्लीमेंट्स तामझाम ना खाएं मेरे हिसाब से। घर के नेचुरल प्रोटीन जो सोर्स हैं, इजी प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स जो हैं वो खाएं, सो दैट इज़ बेस्ट। वो इजी टू एब्जॉर्ब भी होगा और आपकी बॉडी में लगेगा भी ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਈਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ weight loss ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, weight ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਈਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ weight loss ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਚ। एक तो पहली चीज़ ये डिपेंड करती है कि आपने साल भर पहले जो डाइट की थी वही अगर आप डाइट सोचेंगे कि अगले साल वही चीज़ काम आ जाएगी, तो हर बार ऐसा नहीं होता, है ना, क्योंकि एक साल में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपको नहीं पता, है ना। तो उन एक साल में जो चेंजेस हुए हैं किस टाइप के हुए हैं, अगर मैं बात करूं आपकी एज 40-45 की है और आप मेनोपॉज फेज में हैं या मेनोपॉज चल रहा है, तो उसमें अगर आपका वेट बढ़ा है तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, है ना। या आपको कोई और चीज़ डेवलप हो गई है, या पोस्ट प्रेगनेंसी वाला आपका वेट है ना, ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से साल के बाद आपका वेट बढ़ा है, तो वो चीज़ जब आप अगली डाइट करेंगे तो उसमें आपको करंट सिचुएशन, करंट क्या है आपकी, वो देख के उसके हिसाब से डाइट करें, है ना। तो और ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट उसी वाली पुरानी डाइट से कम हो जाए, वो नहीं होता ना, ठीक है। और डाइट अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से ही दी जाती है। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਈਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ weight loss ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡਾਈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ weight loss हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, की चक्कर है ये बारे में? एक्चुअली ये तो हर घर की कहानी है। आप देखो आज मैंने किसी को डाइट दी है ना, वो क्या करेगा कि चलो मैंने की है, उसके कोई फ्रेंड होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा या कोई पड़ोसी होगा या मम्मी होंगी, बहनें होंगी, उनको लगेगा कि अच्छा आप ले रहे हो, चलो हम भी यही चीज फॉलो करके देखते हैं कि क्या होता है ना। तो बोलेगा चलो तुम्हारा कम हुआ तो मेरा भी कम हो जाएगा, ऐसा होता है। मेरे भी एक बार लास्ट केस में हुआ था, उसने अपने 3-4 फ्रेंड्स को दी पर किसी का नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने उनको यही बताया कि आपकी डाइट मैंने कस्टमाइज करके आपके लिए बनाई है, आपके शरीर की क्या ज़रूरत है, आपका रूटीन क्या है, ईटिंग पैटर्न क्या है ना, आपका फिजिकल एक्सरसाइज का पैटर्न, स्लीप का पैटर्न क्या है, उसके अलावा आप कितना स्ट्रेस लेवल क्या है, प्लस आपकी बॉडी अभी कितने वेट में है और आपका कितना टारगेट है ना, और क्या लॉस करना है, फैट लॉस करना है आपने, वाटर लॉस करना है, मसल मास बढ़ाना है, क्या करना है, वो एग्जैक्टली हमें नीड पहले देखनी होती है। तो हर किसी की बॉडी की नीड अपनी अपनी है ना। अगर हो सकता है कि मेरा वेट नहीं कम होगा, वजन नहीं कम होगा, पर मेरे इंचेस लॉस हो जाएंगे तो भी मैं पतली दिखूंगी। हो सकता है हम दोनों का वेट सेम हो, ठीक है, पर मैं पफी दिख रही हूँ, आप कम दिख रहे हो, पर दोनों का वजन तो सेम है जी, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी टाइप भी अलग अलग है, हमारे बॉडी का फ्रेम्स अलग अलग है। जरूरी नहीं अगर सेम वेट वाले लोग हों, कोई एक पतला दिखता है, कोई एक मोटा दिखता है, पर वजन तो दोनों के सेम है। पर हो सकता है कि किसी की स्टेमिना ज्यादा हो, किसी का एंड्योरेंस ज्यादा हो, किसी के बिल्कुल ही ना हो, देखने में वो पतले दुबले हैं। मेरे साथ ऐसे जनरली होता है, क्योंकि जब मैं योगा सिखाती हूँ तो लोग सोचते हैं कि ये तो पतली दुबली है तो बहुत फ्लेक्सिबल होगी, बहुत अच्छा योगा कर लेते, पर है ये मोटे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, लोगों को कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
इट डजेंट मैटर कि आप मोटे हो कि पतले हो, आप इंटरनली कितने हेल्दी हो, आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कितना है वो डिपेंड करता है। सो सेम हैपन विद डाइट ऑल्सो, कि हर एक डाइट हर किसी को सूट नहीं करती, हर एक बॉडी के हिसाब से डाइट बनाई जाती है। अगर आप कर भी रहे हैं तो पहले अपनी बॉडी टाइप जानिए कि आपकी क्या प्रकृति है, वात पित्त कफ क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, उसके हिसाब से आप अगर डाइट लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ weight loss ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ठीक है, जब आप क्या होता है, हम क्या करते हैं वेट लॉस की जर्नी में हम 2-3 महीने ना हम स्पेसिफिकली एकदम कैलोरी काउंट कर करके या वैसे हाई मतलब फैंसी चीजें खाते हैं, हाँ है ना, एकदम खाना भी मतलब कि हमने इतना ही खाना है, इतना ही खाना है। हमारी इच्छा हो रही है कि हमें छोले भटूरे खाने पर हम मन मार रहे हैं, हमारी इच्छा है कि गोलगप्पे खाने हम मन मार रहे हैं है ना। जनरली होता है ना कि वेट लॉस कर रहे हैं तो नहीं जी हमने बाहर की कोई चीज नहीं खानी, हमें मतलब पतला होना है किसी भी तरह। पर 3 महीने तक आप कर लोगे, फिर उसके बाद जब आप नॉर्मल रूटीन में आओगे तो आप मेंटेन कर पाओगे वो चीज नहीं, कभी ना कभी तो खाओगे ही ना। तो जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ऐसी चीजों से करिए जो आप रोज खाते हैं, जिसकी आपके बॉडी को आदत है। अगर और स्पेशली माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप गोलगप्पे खा के भी हैप्पी है ना तो आपका उससे भी वेट लॉस होगा। अगर आप चावल खा के भी हैप्पी है ना तो ऐसा नहीं है कि चावल खा के आपका वेट लॉस नहीं होगा, चावल खा के भी आपका वेट लॉस होगा। यहाँ से आप सेटिस्फाइड होने चाहिए, है ना। तो आप लोगों का होता है कि नहीं हमने आज चीट मील कर ली, हमने आपको अगर आप कर रहे हैं डाइट है ना, आपको लगता है कि हाँ आज मैंने ये चीज़ ज़्यादा खा ली, फैट वाली या मैदे वाली या ऐसा कुछ, ठीक है खा ली, पार्टी थी या कुछ था या मन कर गया खा ली, तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं कि आप जो नेक्स्ट मील है ना, मान लो आपने दोपहर को खा लिया तो रात को आप क्या करें, आप फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खा लें या सूप ले लें या ऐसा कुछ, या प्रोटीन ले लें ताकि वो कंपनसेट हो जाए। स्पेशली फाइबर्स वगैरह ले लें ताकि जो आपने मैदा या रिफाइंड शुगर या रिफाइंड वो खाया हुआ है, कार्ब्स खाया, वो जो है वो बैलेंस हो जाए, फाइबर उसको मेंटेन कर लेगा उसको। तो उस ऐसे आपको बैलेंस करना आना चाहिए डाइट, कि अगर आपने रात में कुछ खा लिया है तो आप दिन के टाइम कोशिश करें कि हल्की डाइट रखें। आपको पता है रात को पार्टी में जाना है या हमने फ्रेंड्स के साथ प्लान है या समथिंग एनीथिंग, तो आप दिन में आप लाइट खाना खाइए, है ना, फाइबरस फूड खाइए, कर्ड लीजिए या प्रोटीन डाइट ऐसे ले लीजिए ताकि रात को आप इंजॉय करके अच्छे से खा सके। लाइट डाइट दिन में रहेगी तो, और वो कंपनसेट होगा। नेक्स्ट डे अच्छे से नॉर्मल जो आपका वर्कआउट है वो ना छोड़ें, वो जरूर करें, रूटीन में जो रखा हुआ है वो जरूर करें। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਈਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।